Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 5 and the name of our unit is Geography. We are on part number 2, which is about interaction between land and people. Today is the review of this unit, which is lecture number 15. So my dear students, let's start the lecture with the recap of the previous lecture. So हमने food insecurity के बारे में, या जिसको हम food security basically कहते हैं, अगर सबके पास जो है वो sufficient food है एक society में, हर किसी के पास excess है food की, तो that is a food secure area. So what is food security? When everyone from the society has access to the food, then that area or that country is food secure. लेकिन food insecurity क्या होती है? जब लोगों की access ना हो, when a certain population does not have access to the food or they are malnourished, so such a society is called food insecure society. So my dear students, it's time for an activity. आज review है, लेकिन हम इसको activity से start करेंगे. Teachers, आपने बच्चों को 1 day before homework देना है कि वो plastic bottles, इसके अलावा वो क्या चीज़ें ला सकते हैं, न्यूज़पेपर लेकर आ सकते हैं जिनसे बच्चे जो हैं कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट जो है वो क्लास में करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम रीसाइक्लिंग की तरफ जो है वो फोकस कर रहे हैं. सो हम 3 R's कहते हैं: रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़. सो पोल्यूशन को कम करने के लिए हम इन 3 R's का इस्तेमाल करते हैं कि जब आप चीज़ों को रीयूज़ करेंगे और रिसाइकल करेंगे तो इस तरीके से आपको कम चीज़ें जो हैं वो रिड्यूस हो जाएगी, आपकी चीज़ों की जो बनाने की तादाद है, और इसी तरीके से जो आप रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं उसको भी आप कम से कम इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू मेक पेपर, सो पेपर इज़ मेड आउट ऑफ वुड. सो अगर आप इस पेपर को रिसाइकल कर लें तो इस तरीके से आप कम से कम दरख्त को काटेंगे और कम से कम जो है वो आपका खर्चा आएगा और आप रिसाइकलिंग की मदद से चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे. आप अपने घर में बहुत सी चीज़ें जो हैं या अपनी क्लास में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो रिसाइकलिंग से बना सकते हैं. आज आपने पेपर बैग बनाना है. हम साइंस में ऑलरेडी पेपर बैग बनाना जो है वो सीख चुके हैं. आपने इसी को एक्टिविटी को कंप्लीट करना है. आपने आज एक अखबार से पेपर बैग बनाना है या आपने एक पेन होल्डर जो है वो प्लास्टिक बॉटल से बनाना है. इसके अलावा आप फ्लावर वाजेस भी बना सकते हैं. सो टीचर्स, क्विकली पॉज द वीडियो, मेक 2 ग्रुप्स एंड मेक 2 आइटम्स फ्रॉम रिसाइकलिंग मटीरियल. I hope everybody has done and enjoyed the activity. So my dear students, अब हम आगे चलेंगे towards the review. So my dear students, these are the student learning outcomes of part 2, जिसमें हमने interaction between land and people पढ़ा था. part 1 में हमने forms and और इसके अलावा हमने forms and types of land भी पढ़े हैं और हमने interaction between land and people भी पढ़ा है. So my dear students, one by one हम इनको revise करते हैं. So when we started part number 2, forms and types of land, lecture number 8, so we discussed about the different forms of land. So what are different forms of land? They are plain, plateau and mountain. So what are mountains? Mountain is a high level area which is broader from the base, and it is 1000 meters from the sea level. Okay, my dear students, then we discussed about the plateaus and the plains. So what is a plateau? Plateau एक ऐसा elevated area होता है from the sea level which is about 600 meters from high from the sea level. And what is a plain? A plain is slightly elevated from the sea level and it is almost on the same level of the sea. Then we discussed about the types of the land. So there are 4 types of the land: tundra, forest, grassland and desert. So इनके बारे में हमने डिस्कस किया था. So what are different types of land of Pakistan? So what are tundra region? So tundra region एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है, टेम्परेचर बहुत लो होता है, सारा साल ये जमा रहता है और यहाँ पर वेजिटेशन भी बहुत ही कम होती है. स्नो लेपर्ड्स, पोलर बियर्स are the inhabitants of this area. Then we discussed about the forests. So what are forests? These are dominated by the trees, or these are the habitat of many plants and animals. And what are the grasslands and deserts? So grassland एक ऐसा area होता है जहाँ trees कम होते हैं and smaller grass and shrubs and flowers are present there. इसके inhabitants जो हैं वो बहुत सारे जानवर होते हैं जिस तरह जो घास पे डिपेंड करते हैं,
या प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, लाइक एलिफेंट्स, जिराफ्स, जीब्रास, गोट्स. दीज आर इनहिबिटेंट्स ऑफ grasslands. Then comes the desert. So desert could be very cold or very dry. सो कोल्ड डेजर्ट्स में ऐसा रीजन होता है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है और इसके अलावा ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, रेनफॉल बहुत कम होती है. इसके अलावा जो हॉट डेजर्ट्स हैं वहाँ रेत ज़्यादा पाई जाती है और टेम्परेचर बहुत हाई होता है, रॉकी एरिया होता है, वेजिटेशन बहुत कम होती है. Okay, my dear students, then in lecture number 10 we discussed about what is the effect of hilly and plateau area on the lifestyle of people. तो हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से मुख्तलिफ एरियाज जो हैं वहाँ पे लोगों का किस तरीके से वो एरिया जो है या वो जो टाइप ऑफ लैंड है वो लोगों के ऊपर असरअंदाज होता है. सो हिली एरियाज़ में लोग जो हैं अपने घर किस तरह के माउंटेन एरियाज़ में बनाते हैं. यहाँ लोगों के घर छोटे होते हैं और जो घरों की छतें हैं वो स्टीप होती हैं, इंक्लाइंड होती हैं, लकड़ियों से घर बनाए जाते हैं ताकि वो गर्म रहें. इसके अलावा जो प्लेटोज़ पे लोग रहते हैं उनके घर भी छोटे होते हैं और आबादी यहाँ पर कम होती है. Then we discussed about the effect of plain and coastal areas on the lifestyle of people. Plain area में ज़्यादा populated area होता है, लोग अपने घर बड़े और हवादार बनाते हैं, ventilated बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे गर्मी थोड़ी बढ़ जाती है. यहाँ पे moderate to hot temperature होता है. Coastal areas में moderate temperature होता है लेकिन it is populated but mostly people depend on fishery, यानी कि फिशरी के ऑक्यूपेशन से लोग ज़्यादा एसोसिएटेड होते हैं. लेक्चर नंबर 11 वाज अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द एनवायरनमेंट. सो अब लोगों का इम्पैक्ट हम पढ़ रहे हैं ऑन द एनवायरनमेंट. तो डिफॉरेस्टेशन जो है वो दरख्तों का काटना है. सो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों किस्म के इम्पैक्ट्स होते हैं लोगों के ऊपर. अगर आप या एनवायरनमेंट के ऊपर अगर आप दरख्तों काटेंगे हवा साफ़ नहीं होगी. इसके अलावा बहुत से जानवरों का जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. सो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे हमें लगाने चाहिए. लेकिन इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये होता है कि कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, इकोनॉमी के लिए बेहतर है, बहुत सी चीज़ें जो है वो इनसे बनाई जाती हैं. द लेक्चर नंबर 11 में हमने अगेन इम्पैक्ट पढ़ा था अबाउट द डैम्स. सो डैम्स बनाने के अगर कुछ फ़ायदे हैं तो इनके नुकसानात भी हैं. फ़ायदे ये हैं कि आप पानी को स्टोर कर सकते हैं, फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है, फ्लड्स जो हैं वो कम से कम आते हैं. और इनके नुकसानात ये हैं कि इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होता है डैम्स बनाने की वजह से. Then lecture number 12 was about the impact of industrialization and the use of automobiles. यानी कि क्या impact है automobiles का industrialization का. इनके भी positive और negative impacts हैं. Industrialization से लोगों को jobs मिलती हैं, हमारी economy बेहतर होती है, import कम हो जाती है. लेकिन negative impacts ये हैं कि pollution बढ़ती है. Automobiles से आप secure, comfortable और safe सफ़र करते हैं. लेकिन इसके नुकसानात ये है कि again it causes pollution और acid rain का बाइस बनती हैं ये दोनों चीज़ें. So then we move forward towards lecture number 13 जिसमें हमने different occupations के बारे में पढ़ा था. तो पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ occupations से लोग associated हैं वो है agriculture, livestock, forestry, mining and industry. Again, how industries are contributing in Pakistan, what is mining? So हमने industries के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से industries जो हैं उसमें 20% जो लेबर है पाकिस्तान की वो उससे एसोसिएटेड है और ये पाकिस्तान के लोगों को जो है जॉब्स प्रोवाइड करता है. और इसके अलावा इंपोर्ट जो है वो हमारी कम हो जाती है और एक्सपोर्ट बढ़ती है जिसकी वजह से पाकिस्तान यानी कि मुल्क जो है वो इकोनॉमिकली बेहतर हो जाता है. और माइनिंग जो है वो एक ऐसा शोबा है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज को ज़मीन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इससे भी बहुत सारी लेबर और लोग जो है वो मुंसलिक है. सो द लेक्चर नंबर 14 वाज अबाउट द फूड सिक्योरिटी. यानी कि एक ऐसा यूनाइटेड स्टेट के अकॉर्डिंग ये एक ऐसी टर्म है कि जब तमाम एक सोसाइटी के तमाम लोग जो हैं उनकी एक्सेस हो खाने की तरफ और तमाम लोग जो हैं वो खाना जो है उनको मैसर हो तो हम कह सकते हैं कि ये इलाका फूड सिक्योर है. लेकिन अगर आवाम जो है वो भूखी सोएगी और उनके पास खाना जो है उनको मैसर नहीं होगा तो ऐसे इलाके को या ऐसे मुल्क को हम फूड इनसिक्योर कहते हैं. So my dear students, for practice you can download this worksheet from the description box below this video or you can get it in print form by your teacher. So my dear students, here write down your name and the roll number, label the picture and landforms and write the few points about these lands. So आपने बताना है कि ये कौन सा लेवल है, फिर ये कौन सा लेवल है, then this and this. और इसके बारे में आपने 3 points भी लिखने हैं. Write any 3 negative impacts of deforestation. कोई भी 3 आपने गैर मुस्बत बातें लिखनी है डिफॉरेस्टेशन के बारे में. Then what should a country do to become food secure? एक मुल्क को
फूड सिक्योर होने के लिए, यानी कि फूड इनसिक्योरिटी को किस तरीके से हम ख़त्म कर सकते हैं, कोई भी 2 या 3 वजूहात जो हैं वो आप लिख सकते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं ये। Then write the names of the types of lands. किन किन टाइप्स के लैंड्स होते हैं? There are 4 types of lands. Write down their name. What do you know about agriculture of Pakistan? पाकिस्तान की काश्तकारी से लोग किस तरीके से मुंसलिक हैं, काश्तकारी के बारे में आप क्या जानते हैं? You have to write a note. So quickly pause the video and complete the worksheet. I hope everybody has done it. So my dear students, this was an assessment sheet. ये test था आपका. You will submit it to your teacher and then we will move forward towards the homework. For homework, जो project हमने start में किया था, do repeat it at home. और आपने भी 3 hours के बारे में अपने पेरेंट्स को जो है वो demonstrate करना है, उसके बारे में बताना है कि किस तरीके से आप reuse, recycle और reduce कर सकते हैं और आप चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करके बेहतरी ला सकते हैं अपने environment में. So my dear students, the wrap up of this unit part 2 is कि हमने मुख्तलिफ interactions पढ़ी, हमने land forms पढ़ी, हमने land की types पढ़ी, हमने उन land types का क्या impact है लोगों के ऊपर, हमने वो भी discuss किया. इसके अलावा लोगों का अपने environment पे क्या effect होता है, हमने वो भी discuss किया. We discussed about different occupations of the people of Pakistan are associated with, हमने उसको भी discuss किया. We discussed about the food security और how Pakistan is food insecure और किस तरीके से हम इसको overcome कर सकते हैं. We have discussed that. So my dear students, I hope you have enjoyed and learned a lot of things from this part of unit number 5. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.